begin. So if you could just probably drop in a thumbs up or just, yeah. Okay, perfect, great. So firstly, thank you so much for the lovely introduction, Jonas, and thanks to the Masai School and Prep by my school, by Masai School for calling me for the session. I think that obviously the agenda and what we are here for is pretty clear. You all know what it is that we're going to be discussing. So I'm not going to spend too much time talking about what we're going to discuss, because let's practically implement things and help you actually optimize your profile. So, but before we get right into the session, I just have a quick question for all of you. I like to keep my sessions very engaging, so I'd keep asking you questions from time to time, and I definitely encourage you to do the same as well. At any point of time you have any questions, the only request is during the session, don't unmute yourself or ask your questions in the middle of me speaking or explaining something. Towards the end, I'll have like a dedicated Q&A in any case, the last 20 minutes, wherein you can unmute yourself and ask your questions as well. But if a question pops up into your head, even during the session or while I'm explaining a particular topic, you're free to put that question up in the chat and I'll make sure that all the questions are answered, right? Now, to begin with, I want you to quickly let me know the response to this question in the chat. You can use the chat box to tell me. I know that most of you are here, working towards getting tech jobs or working in tech roles already. So I want to understand that what kind of roles or companies, or if you want to answer both, that also works. Do you, aim to target to get into or land a job at, etc.? Like, for example, you could say Google and, data analyst as a position, or someone may want to become a quality assurance engineer, or someone may be interested in becoming a software engineer or whatever. I'm just trying to understand if you can just share with me what kind of roles are you aiming to land, and a few company names, if you could share with me, because that could really help. And you can please put that in the chat. You don't need to unmute yourself for that, please. You can put it in the chat box. And that will help me also further help you customize your LinkedIn profile and optimize it accordingly. That's the reason I'm asking you this question. Okay. So yeah, if everybody could just, so Saurabh says full stack developer. Okay. Nikita says full stack developer, Infosys. Narendra says AI ML. Palak says both. I'm not sure what both means. Okay. Web developer, Meta, web developer, SDE, full stack developer, data analyst, founder, DSA, data science. I'm not sure if DSA is like a role. Obviously not. It's okay, but fine. Full stack web developer, front end developer, software engineer. Cool. So thanks everyone. I think most of you either want to become full stack developers, or you want to get into non-stack development or front end or back end development or web development or AI, ML, data science, right? If I talk in terms of technologies, at least overall, those are the things that I can see popping up. DevOps engineer. Okay, perfect. Now, thanks for letting me know that, because that will help me further customize the session for all of you when I'm telling you how you can actually set up your LinkedIn profile. So now on that note, let's get started with the session. What I'm going to be doing is I'm going to be sharing my screen and taking you all to my LinkedIn profile. And I'm going to practically be showing you step by step how every section of your LinkedIn profile needs to be optimized and how that will ultimately help you create a personal brand. Okay. So just give me 1 second. Okay. I have gotten to know that you would want me to speak in Hindi. So I will switch the language to Hindi now, because that's what most people are comfortable with. So I will take the conversation forward in Hindi. I hope that the camera placement is better now, Jonas. And is everybody able to hear me? ठीक है, हम हिंदी में बात करेंगे, no problem, not at all. ठीक है. So like I was saying कि जिस तरीके के रोल्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो और जिन कंपनीज में आप अप्लाई करना चाहते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उनसे मैं आपको हेल्प कर पाऊंगी आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करने में. जब मुझे वो कीवर्ड्स पता होंगे, वो रोल्स पता होंगे, और तब जब मैं आपको डेमो दूंगी, मैं आपको एक्चुअल में इंस्टेंसेस या एग्जांपल्स दे पाऊंगी कि कैसे आपको अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करनी है. ठीक है. अब देखो, प्योर शुद्ध हिंदी तो वैसे भी मैं बोल नहीं पाऊंगी, वो तो हम में से किसी को भी नहीं आती है. तो हिंदी इंग्लिश ही होने वाली है. इंग्लिश अब हिंदी है या इंग्लिश, आई डोंट नो, but this is what I'm going to speak in. ठीक है, ये लैंग्वेज होगी. Now with that, give me 1 second. मैं अपना स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट करती हूँ, बिकॉज मुझे अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल आपको प्रेजेंट करनी है आप सबको. सो गिव मी 1 second. ठीक है. क्या आप सबको मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल दिख रही है?
इफ यू कैन जस्ट क्विकली पुट अ थम्स अप इन द चैट अगर सबको दिख रही है। चैट बॉक्स खोल लेती हूँ मैं क्विकली। ठीक है, परफेक्ट, ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। लेट्स कंटिन्यू ऑन दैट नोट। अब पहली बात मैं आपको बता दूं कि मैं आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक पूरा डेमो दूंगी। डेमो इन द सेंस मैं आपको प्रैक्टिकली मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल पे हर एक सेक्शन के बारे में बताऊंगी, आपको दिखाऊंगी कैसे आपको उसको अपडेट करना है, कैसे ऑप्टिमाइज करना है, कौन से वर्ड्स यूज करने हैं, डिपेंडिंग ऑन आप किस तरीके के रोल्स और कंपनीज में अप्लाई करना चाहते हो, आपको किस तरीके का करियर पाथ चाहिए। अब फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जब भी आप एक सोशल मीडिया प्रोफाइल सेटअप करते हो, सिर्फ लिंक्डइन नहीं, कोई भी सोशल मीडिया प्रोफाइल, रियलिटी यही है कि सबसे पहले इंसान आपकी डिस्प्ले पिक्चर देखता है, राइट? वी ऑल नो इट। सबसे पहले आपकी जो डिस्प्ले पिक्चर होती है, उसी से इंसान को पता चलता है कि ये जो नाम है एसोसिएटेड आपके साथ, वो इंसान कौन है, राइट? अब धैर्य गंगवानी, अगर चाहूँ तो मैं सेशन अपनी वीडियो ऑफ रख के भी ले सकती हूँ, आप सिर्फ मेरे को सुन पाएंगे, बट इम्पैक्ट उतना नहीं होगा, राइट? जब आप मुझे देख भी पा रहे हैं और मैं बात कर रही हूँ और समझा रही हूँ, इम्पैक्ट विल बी मोर। कैन यू म्यूट एवरीबॉडी प्लीज? मैम प्लीज अनम्यूट कर दीजिए। मैम मैम प्लीज आप अपने एंड से उनको म्यूट कर दीजिए। ठीक है, आई हैव म्यूटेड एवरीबॉडी नाउ। अब ऐसा होगा तो मुझे यही करना पड़ेगा। देयर यू गो। ठीक है, लेट्स गो अहेड। सो लाइक आई सेड, सबसे पहली चीज दैट एनीबॉडी वो है आपका डिस्प्ले पिक्चर। ठीक है, अब डिस्प्ले पिक्चर लिंक्डइन क्योंकि एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, आपको 3 चीजें याद रखनी है जब आप अपना डिस्प्ले पिक्चर सेट कर रहे हो ऑन लिंक्डइन। सबसे पहले मेक श्योर कि जो आप डिस्प्ले पिक्चर सेट कर रहे हो उसमें फोकस आपके फेस पे, आपके चेहरे पे। इट शुड बी अ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, या तो उसको हम मग शॉट या हेड शॉट बोलते हैं, जहां पे सिर्फ द फर्स्ट हाफ और द फर्स्ट हाफ पोर्शन ऑफ योर बॉडी शुड बी विजिबल। अगर कोई भी पिक्चर आप इंस्टाग्राम पे यूज करने वाले हो पोस्ट करने के लिए, तो प्लीज उसको यूज मत करना एज योर लिंक्डइन डिस्प्ले पिक्चर। दैट इज अ गुड वे टू चेक कि क्या मुझे इसे लिंक्डइन पे यूज करना चाहिए या नहीं। तो मोस्टली जो पिक्चर्स आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने वाले हैं वो आपकी लिंक्डइन डिस्प्ले पिक्चर नहीं होने चाहिए। तो आप अपने आप से सवाल पूछ सकते हो, फिर आप चेक कर सकते हो इज इट द राइट पिक्चर टू पुट अप और नॉट। सेकेंड थिंग जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपकी जो डिस्प्ले पिक्चर है उसमें आपको प्रोफेशनली ड्रेस्ड होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ दैट यू नीड टू वेयर अ ब्लेजर और अ कोट या आपको फॉर्मली पैंट शर्ट पहनना है, नहीं, बट कैजुअल आउटफिट्स में पिक्चर्स मत डालना प्लीज, जो बहुत ही ज्यादा कैजुअल लगे या बहुत ही ज्यादा अनप्रोफेशनल लगे। एंड तीसरी चीज, आपको जो बैकग्राउंड होता है आपकी डिस्प्ले पिक्चर का लिंक्डइन पे, दैट शुड बी क्लियर। बाय क्लियर आई मीन कोई भी डिस्ट्रैक्शन, कोई भी ऑब्जेक्ट बैकग्राउंड में नहीं होना चाहिए, कोई भी और इंसान नहीं होना चाहिए। सो मेक श्योर कि आपको जो बैकग्राउंड है वो डिस्प्ले पिक्चर का, वो बहुत ही ज्यादा क्लियर हो और फोकस सिर्फ आप पे हो। जैसे कि अगर आप मेरा डिस्प्ले पिक्चर का बैकग्राउंड देखोगे, इट्स व्हाइट इन कलर, वो मैंने चेंज किया है। ओरिजिनली ऑब्वियसली वो वैसा नहीं था, कुछ ऑब्जेक्ट्स थे बैकग्राउंड में, एक टेबल था, चेयर था, जो भी था। आप remove.bg पे जाके कोई भी पिक्चर अपलोड करके उसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट कर सकते हो, वो एक तरीका है। या तो आप कैनवा पे जा सकते हो, कैनवा इज अ वेरी गुड टूल, CANVA। आप अकाउंट क्रिएट कर लो फॉर फ्री और आप कोई भी इमेज उधर अपलोड करके उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो। जस्ट मेक श्योर कि बैकग्राउंड कलर ज्यादा डार्क ना हो या ज्यादा ब्राइट कलर ना हो। डोंट यूज ब्राइट कलर्स लाइक रेड, येलो एक्सेट्रा, ट्राई टू यूज मोर न्यूट्रल कलर्स एंड सटल कलर्स। ठीक है, दैट इज वन टिप। अब ये हो गई डिस्प्ले पिक्चर की बात, बिकॉज दैट इज द फर्स्ट थिंग जो कोई भी देखेगा आपकी प्रोफाइल पे। अब सेकंड चीज जो आपको बहुत ही ज्यादा आई वुड से फोकस के साथ क्रिएट करनी है वो है आपका लिंक्डइन बैनर। अब जो मेरा माउस या कर्सर, जो माउस का कर्सर है वो जहां पॉइंट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द लिंक्डइन बैनर। हम सबके पास एक स्पेस होती है डिस्प्ले पिक्चर के जस्ट पीछे, जिसको लिंक्डइन बैनर बोलते हैं। बाय डिफॉल्ट लिंक्डइन आपको वो ग्रीन कलर का ब्लैंक स्पेस देता है, ओके, बट उस ब्लैंक स्पेस को मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स एज इट इज ही रखते हैं, कुछ नहीं डालते उसमें, राइट? सो दैट इज नॉट द राइट वे। मैंने आधे से ज्यादा लोगों को उसको यूटिलाइज करते हुए नहीं देखा, और जो लोग यूटिलाइज करते हैं उनको मैंने 2 तरीके से यूटिलाइज करते हुए देखा है। एक है वो ये करते हैं कि वो कोई भी रैंडम कोट, गूगल से मोटिवेशनल कोट
कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और डाल देते हैं, या तो वो जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं उसका लोगो, या जिस भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं उस कॉलेज या इंस्टीट्यूशन का लोगो लगा देते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप ये नहीं कर सकते हो या ये आप बैनर पे नहीं डाल सकते हो, बट आपका पूरा बैनर सिर्फ एक कंपनी का लोगो या सिर्फ एक कॉलेज इंस्टीट्यूशन का लोगो नहीं हो सकता, ना ही एक रैंडम गूगल से इमेज या गूगल कोट हो सकती है, वो अच्छा नहीं लगता है। तो अब सवाल ये है कि आपको अपने लिंक्डइन बैनर पे एक्चुअल में डालना क्या होता है। ओके, सो 3 सवाल होते हैं। जब भी कोई भी इंसान जो आपको जानता भी नहीं है, पहली बार आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल देख रहा है, उनको अगर इन तीनों सवाल के जवाब नहीं मिलते हैं आपके लिंक्डइन बैनर को देख के, देन इट मीन्स कि आपको अपने लिंक्डइन बैनर पर अभी भी काम करना बाकी है। और वो 3 सवाल हैं कि हु आर यू, आप कौन हो, ओके, व्हाट डू यू डू, मतलब आप करते क्या है, एंड तीसरा हाउ कैन यू हेल्प पीपल, और व्हाट इज योर स्किल सेट, कि आपकी मेजर स्किल्स क्या है और आप लोगों की मदद कैसे कर सकते हो। तो आप कौन हो, आप क्या करते हो और आप लोगों की मदद कैसे करते हो, ये आपके मेन स्किल्स, मेजर स्किल्स क्या है। अगर इन तीनों सवाल के जवाब मुझे आपके बैनर को देख के नहीं आते हैं तो दैट मीन्स योर बैनर इज नॉट स्पीकिंग फॉर इटसेल्फ। ठीक है, अगर आप मेरा बैनर देखोगे इस वक्त, तो आपको सबसे पहले तो एक लाइन, कोट, मंत्रा, जो बुलाना है बुला लो, वो दिख जाता है, दैट इज एक्सेलरेटिंग योर करियर ग्रोथ। उसको पढ़ते ही किसी को भी समझ में आ जाएगा दैट जो भी मैं करती हूँ या जो भी मेरा फुल टाइम प्रोफेशन है, दैट इज रिलेटेड टू हेल्पिंग पीपल इन देयर करियर्स, या उनकी करियर ग्रोथ में मैं मदद करती हूँ किसी तरीके से। इतना तो आपको एक लाइन से ही समझ में आ जाता है। अगर फिर भी आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये करती क्या है एक्सेट्रा, तो मैंने मेरे नाम के नीचे मेरी बायो भी लिखी हुई है, जहां पे मैंने बताया आई एम द फाउंडर ऑफ रेडी कोड्स। फिर मैंने मेंशन किया करियर कोच एज अ कीवर्ड, कंटेंट क्रिएटर, 150 500 प्लस टॉक्स एक्सेट्रा। ठीक है, और फिर आप देखोगे नीचे तो मैंने कुछ लोगोस भी डाले हुए हैं ऑफ एडटेक स्टार्टअप्स एंड कॉलेजेस, जहां पे मैं सेशंस दे चुकी हूँ। अब ये मेरे लिए जरूरी क्यों है, क्योंकि बीइंग समबडी इन द सोशल मीडिया पब्लिक आए, एंड क्योंकि मैं कंटेंट क्रिएटर और करियर कोच हूँ, मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है लोगों को दिखाना कि मैंने किन ब्रांड्स के साथ काम किया है। इट इज इंपॉर्टेंट इन माई फील्ड ऑफ वर्क। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ सिमिलरली आप अपने लिए कैसे एक बैनर बना सकते हो। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू पुट फुल स्टैक डेवलपमेंट बहुत ज्यादा। ठीक है, अब अगर आप एक aspiring full stack developer हो, or you want to become a full stack developer, or you're already a full stack developer, you're looking for a job switch, या कोई भी सिचुएशन ले लो, तो इट गोज विदाउट सेइंग कि आपके बैनर में फुल स्टैक डेवलपमेंट या फुल स्टैक डेवलपर एज अ कीवर्ड 100% होना चाहिए। दैट्स द फर्स्ट कीवर्ड जो आपके बैनर पे होना चाहिए। उसके अलावा फुल स्टैक डेवलपमेंट में जो भी आपकी फ्रंट एंड और बैक एंड टेक्नोलॉजीज है जिन पे आप काम कर रहे होगे, बिकॉज यू आर अ फुल स्टैक डेवलपर, वो कीवर्ड्स भी आने चाहिए, HTML, CSS, React JS, जो भी आप जिस पे भी काम कर रहे हो। उसके अलावा अगर कोई भी टूल है या सॉफ्टवेयर है जो आप हाईलाइट करना चाहते हो, जो आप जानते हो कि रिक्रूटर्स वो देख के रिक्रूट करते हैं फ्रंट एंड फुल स्टैक डेवलपमेंट रोल में, तो प्लीज स्पेसिफाई दोस कीवर्ड्स। जनरली जो आप कीवर्ड्स लिखोगे वो या तो आपका जॉब रोल होगा, वो तो होगा ही। उसके अलावा जॉब रोल में जो भी टेक्निकल स्किल्स लगती हैं या टूल्स या सॉफ्टवेयर लगते हैं या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लगते हैं, वो कीवर्ड्स ही होंगे। अगर मैं एक और एग्जांपल लूं तो वेब डेवलपर अगर आप हो तो वेब डेवलपमेंट, HTML, CSS, या अगर आपको कोई और भी कीवर्ड लिखनी है, फॉर एग्जांपल इफ यू आर एन एंड्रॉइड ऐप डेवलपर, तो आप एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट लिखोगे, आप जावा लिखोगे, आप कोई भी और कीवर्ड जो रेलेवेंट है वो लिखोगे। अगर आप डेटा एनालिस्ट हो या डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो, तो आप कीवर्ड सच एज डेटा एनालिसिस, डेटा विजुअलाइजेशन, पाइथन, पावर BI, R, टैबलो, ये सब डालोगे एज कीवर्ड्स, राइट, इन योर बैनर। सो द पॉइंट इज आपके बैनर को देखते ही मुझे पता चल जाना चाहिए कि क्या किस फील्ड में या किस डोमेन में एक्सपर्टीज रखते हो या काम करते हो। इट्स एज सिंपल एज दैट। ओके, अब ऑब्वियसली आप लोग मेरी तरह कोई लोगोस तो यूज करोगे नहीं, बिकॉज दैट इज नॉट व्हाट यू डू। तो इंस्टेड ऑफ दैट आप लोगों को ये करना है कि जो भी कीवर्ड्स आप यूज कर रहे हो अपने बैनर पे, टू स्पेसिफाई कि आप किस फील्ड या डोमेन में काम करते हो एंड हाउ यू कैन हेल्प पीपल। उसी से रेलेवेंट यू कैन पुट अप इमेजेस फ्रॉम गूगल। ठीक है, अब गूगल पे आपको कॉपीराइट फ्री इमेजेस मिल जाएंगे। अगर आप डेटा एनालिसिस में करियर बिल्ड करना चाहते हो, तो आप डेटा एनालिसिस या डेटा एनालिस्ट से रिलेटेड जैसे कि आप वर्ड टाइप करोगे, आपको बहुत सारी कॉपीराइट फ्री इमेजेस मिल जाएंगी, एंड यू कैन पुट दोस एज इलस्ट्रेशंस और इमेजेस ऑन योर बैनर। क्यों? क्योंकि विजुअल मेमोरी ह्यूमन बींग्स की बहुत स्ट्रांग होती है। जो भी हम देखते हैं वो हम इजिली रिटेन कर पाते हैं, हमारा ब्रेन रिटेन कर पाता है। सो बहुत बार ऐसा होगा कि लोग आपके लिंक्डइन बैनर पे आएंगे बट दे विल जस्ट स्किप थ्रू इट, वो शायद आपके कीवर्ड्स पढ़ेंगे भी नहीं और आगे बढ़ जाएंगे। बट इमेज पे लोग रुक जाते हैं, राइट? कोई भी इलस्ट्रेशन होगी या इमेज होगी रिलेटेड टू, अगर आपको
फुल स्टैक डेवलपमेंट में जाना है उससे रिलेटेड, वेब डेवलपमेंट में जाना है उससे रिलेटेड, अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाना है तो उससे रिलेटेड, अगर आप कुछ इमेजेस डाल दोगे तो इमेज को देखते ही भी 1-2 सेकंड में इंसान बता सकता है कि आप किस फील्ड में काम करना चाहते हो या कर रहे हो, राइट? सो इट्स जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस एंड फॉर द ईज ऑफ द यूजर जो आपके प्रोफाइल पे आएगा। सो आई रिपीट अगेन, सबसे पहले तो मेक श्योर आपके बैनर पे कीवर्ड्स है रेलेवेंट टू द टेक्नोलॉजीज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड द रोल यू आर वर्किंग इन और एस्पायर टू वर्क इन। दूसरी चीज है आप इमेजेस यूज करिए उन कीवर्ड से रिलेटेड, ताकि आपके इमेजेस के थ्रू भी किसी भी इंसान को पता चल जाए कि आप करते क्या हो। एंड थर्ड, 3 क्वेश्चंस के आंसर मिलने चाहिए आपकी बैनर को देख के, हु आर यू, व्हाट डू यू डू, हाउ डू यू हेल्प मी, ठीक है? नाउ वंस ऑल ऑफ दिस इज मेट, देन योर बैनर इज गुड टू गो। आपको अगर अपना बैनर डिजाइन करना है, आप बैनर को भी कैनवा पे डिजाइन कर सकते हो। लिंक्डइन बैनर का एक सेक्शन होता है कैनवा पे। जब आप लिंक्डइन बैनर टाइप करोगे कैनवा पे, आपको 1000+ टेम्पलेट्स मिल जाएंगी लिंक्डइन बैनर बनाने की, अलग अलग कलर्स में, अलग अलग डिजाइन में। ऑल यू हैव टू डू इज आप अपने पसंद का टेम्पलेट चूज कर लीजिए और फिर आप बैठ के अपना बैनर एडिट कर सकते हैं अपने हिसाब से, और कैनवा से ही डायरेक्टली अपने लिंक्डइन अकाउंट पे अपना बैनर अपलोड भी कर सकते हैं, बिकॉज अब कैनवा का एक इंटीग्रेशन आ गया है जिसमें आप अपना लिंक्डइन अकाउंट कैनवा से इंटीग्रेट या लिंक कर सकते हो, जिसकी वजह से आप डायरेक्टली अपना बैनर कैनवा से लिंक्डइन पे अपलोड कर सकते हो, ठीक है? सो इट्स वेरी इजी। मैंने भी अपना बैनर कैनवा पे ही बनाया है। इट विल हार्डली टेक यू हाफ एन आवर और 1 आवर मैक्स। सो हमने बात की डिस्प्ले पिक्चर के बारे में, देन हमने बात की बैनर के बारे में, एंड नाउ वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस होता है आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल में व्हेन इट कम्स टू ऑप्टिमाइजेशन। सो मैंने इसे हाईलाइट कर दिया है ब्लू में, राइट, इफ यू कैन सी, एंड दिस इज कॉल्ड द हेडलाइन सेक्शन। अब जब आप हेडलाइन सेक्शन की बात करते हो, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इज कि आपके हेडलाइन सेक्शन पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन स्टार्ट होता है। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आप सबने, आई डोंट नो, सुना होगा या नहीं, बट बेसिकली फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई भी रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हो, आज आपको अपनी फैमिली के साथ आज डिनर पे जाना है और आपको एक अच्छा रेस्टोरेंट नहीं मिल रहा है, लेट्स से टू ईट इंडियन फूड, तो आप क्या करोगे? आप टाइप करोगे गूगल पे गुड इंडियन फूड रेस्टोरेंट्स और गुड restaurants serving or restaurants serving good Indian food or North Indian food near me, या आपके एरिया का नाम आप डाल दोगे, right? That is what you will put on Google, and then Google will show you a list of different restaurants. अब ऑब्वियसली बात है, जो फर्स्ट पेज पे रिजल्ट्स आ रहे हैं रेस्टोरेंट्स के या कैफेज के या होटल्स के, आप उनमें से ही मोस्टली किसी एक को चूज करोगे, या मैक्सिमम आप सेकंड पेज तक जाओगे गूगल के, राइट? आप 10वें या 100th पेज पे तो जाके नहीं चूज करोगे किसी होटल को। क्यों? क्योंकि जो भी रेस्टोरेंट्स और होटल्स फर्स्ट पेज पे आ रहे हैं, उन्हें गूगल ने रैंक किया है, उनके रिव्यूज अच्छे हैं, उन्हें अच्छे स्टार्स मिले हैं, और तभी वो फर्स्ट पेज पे दिख रहे हैं, राइट? सिमिलरली लिंक्डइन पे भी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ऐसे ही काम करता है, और जब कोई भी रिक्रूटर या टैलेंट एक्विजिशन मैनेजर या एचआर किसी टैलेंट को ढूंढता है लिंक्डइन पे टू हायर समबडी और एन एम्प्लॉय फॉर अ जॉब रोल, तो वो कीवर्ड्स के थ्रू ही आपकी प्रोफाइल को सर्च करते हैं, और उन कीवर्ड्स के थ्रू ही जो प्रोफाइल्स उनको दिखती हैं वो उनको प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि लिंक्डइन खुद उन्हें वो प्रोफाइल्स दिखा रहा है। तो मैं आपको इसका लाइव एग्जांपल दिखाती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे एक फुल स्टैक डेवलपर को हायर करना है, मैं एक रिक्रूटर हूँ, आप ऐसा समझ लीजिए, अज्यूम करते हैं हम ऐसा, ठीक है? अब फुल स्टैक डेवलपर मैंने कीवर्ड इधर सर्च बार में एंटर कर दी है। अब आप देखेंगे कि लिंक्डइन, जस्ट अ सेकंड, अब मैं इसको फिल्टर कर दूंगी, पीपल, कंपनीज, जॉब्स, ये जो भी आपको दिख रहा है सारे फिल्टर्स हैं, ठीक है? अब मैं इस कीवर्ड को, फुल स्टैक डेवलपर को, पीपल वाले फिल्टर से फिल्टर आउट करूंगी। क्यों? बिकॉज आई एम लुकिंग फॉर पीपल हु आर फुल स्टैक डेवलपर्स, ठीक है? तो मैंने इसको फिल्टर कर दिया। अब आपको दिखेगी लिस्ट जो कि लिंक्डइन आपको दिखा रही है, सीमा आलम, पृथ्जा मोर, अरबाज अंसारी, जो भी ये लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, यू कैन सी करीबन 10,40,000 रिजल्ट्स कुछ हैं, ठीक है? बट फिर भी मुझे यही इन्हीं लोगों के नाम क्यों दिख रहे हैं फर्स्ट पेज पे? इधर भी आप देखो गूगल की तरह बहुत सारे पेजेस हैं। अब अगर मैं एक रिक्रूटर हूं, आप अपने आप को रिक्रूटर की जगह रखो, आप 100 पेज पर जाके कोई किसी कैंडिडेट को नहीं ढूंढोगे, आपका टाइम भी प्रेशियस है, आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे, आप पहले 3 मैक्सिमम 4 पेजेस तक जाओगे और टैलेंट को हायर कर लोगे उधर से, क्योंकि लिंक्डइन आपको खुद उनकी प्रोफाइल्स दिखा रहा है इन कीवर्ड्स के लिए, राइट? पर मेन क्वेश्चन ये है कि इन लोगों की प्रोफाइल्स क्यों दिख रही हैं आपको फॉर दीज कीवर्ड्स। सो अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो इन सब की प्रोफाइल में हेडलाइन पे फुल स्टैक डेवलपर कीवर्ड दिख रही होगी आपको। वो तो पहली चीज है, वो तो है ही कॉमन, हर एक इंसान की हेडलाइन में आपको फुल स्टैक डेवलपर दिख रहा होगा। मैं इधर इधर
ठीक है, हियर, एवरीवेयर, दैट इज वन थिंग। बट सिर्फ उसकी वजह से उनकी प्रोफाइल्स नहीं दिख रही हैं, दे हैव ऑप्टिमाइज्ड देयर प्रोफाइल फॉर दैट कीवर्ड मल्टीपल टाइम्स, इसलिए भी उनकी प्रोफाइल्स दिख रही हैं, वो मैं आपको समझाऊंगी। पर आपको एक चीज समझनी है, आप सीमा आलम की अगर प्रोफाइल देखेंगे तो शी हैज रिटन फुल स्टैक डेवलपर, Ionic, JavaScript, Angular, Node.js, SQL, React, MongoDB, Express.js. These are all the tech stack names that she's put up, all the technology she's working on. ये क्यों important है? क्योंकि जिस भी role के लिए as a full stack developer, she's working on all of them. And when any recruiter is looking for a full stack developer, mostly वो चाहती है कि इन keywords के लिए उसकी प्रोफाइल शो अप करे, इसलिए उसने वो keywords लिखे हुए हैं। अगर आप मेरी प्रोफाइल पे जाओगे, let's go back to my profile. Give me a second. So if you look at my profile, तो आपको keywords दिखेंगे मेरे headline में, transform 5000 plus careers, TEDx speaker, resume building, career coach, keynote speaker, personal branding, blah blah blah. अब ये keywords क्यों लिखे हुए हैं? Because I would want कि जब भी कोई भी इंसान एक career coach को ढूंढ रहा हो या resume building keyword टाइप करके resume building के लिए help चाहिए उसको, या पर्सनल ब्रांडिंग या पब्लिक स्पीकर टाइप करे, मेरी प्रोफाइल वन ऑफ द प्रोफाइल्स होनी चाहिए, अगर फर्स्ट पेज पे नहीं, एटलीस्ट फर्स्ट 3 पेजेस पे मेरी प्रोफाइल आनी चाहिए इन कीवर्ड्स के लिए। तो आपको भी अपने आप को सेम क्वेश्चन पूछना है, व्हाट आर द कीवर्ड्स फॉर व्हिच आई वांट माय प्रोफाइल टू शो अप और टू रैंक अप व्हेन समबडी टाइप्स इन अ पर्टिकुलर कीवर्ड। कौन सी कीवर्ड्स को इंसान टाइप करेगा और मैं चाहता हूं या चाहती हूँ कि मेरी प्रोफाइल शो करे। अगर आप एक वेबसाइट डेवलपर बनना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप चाहेंगे कि बेसिक टर्म जो है वेबसाइट डेवलपर या वेबसाइट डेवलपमेंट, उसके लिए तो आपकी प्रोफाइल शो हो ही हो, तो आप वो डालोगे ही अपने हेडलाइन में, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको लैंग्वेजेस मेंशन करनी है आप वो मेंशन कर दोगे। तो माय पॉइंट इज, टूल हो, सॉफ्टवेयर हो, स्किल हो, या कोई भी कीवर्ड हो जिसके लिए आप चाहते हो आपकी प्रोफाइल शो अप करे और वो नेसेसरी उस रोल के लिए, वो सारे आपको हेडलाइन में लिखने हैं। एक और चीज अगर आप नोटिस करोगे वो ये है कि मोस्ट ऑफ द कीवर्ड्स जो मेरे बैनर में है, मेरे लिंक्डइन बैनर में इधर, वो इधर भी है मेरे हेडलाइन में, ठीक है। करियर कोच हो गया, कंटेंट क्रिएटर हो गया, 500 प्लस टॉक्स हो गया, मैंने वो सेम कीवर्ड्स बार बार यूज किए हैं रेपिटेटिवली। क्यों? जानबूझ के किए हैं, ठीक है। ये मत सोचना कि मैंने रिपीट किया है, मैंने जानबूझ के किया है, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि ब्रांड रिकॉल वैल्यू बिल्ड हो, जो भी मेरी प्रोफाइल पे आए उसको बार बार ये याद दिलाया जाए कि धैर्या एक करियर कोच है, कंटेंट क्रिएटर है, और वो रेज्यूमे बिल्डिंग, पर्सनल ब्रांडिंग, इन सारी चीजों में हेल्प करती है, ठीक है। तो आपको भी ये ध्यान में रखना है कि एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करनी है बिटवीन योर बैनर एंड योर हेडलाइन, एक सिंक होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बैनर में आप डेटा साइंस, डेटा विजुअलाइजेशन, टैबलो, पावर बीआई लिख रहे हो और फिर आपके हेडलाइन में आप डिजिटल मार्केटिंग लिख रहे हो, बिजनेस स्ट्रैटेजी लिख रहे हो, एसईओ लिख रहे हो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपके पास डिजिटल मार्केटिंग और डेटा एनालिसिस स्किल्स दोनों नहीं हो सकती, बट फिर ये दोनों कीवर्ड्स आपके बैनर में भी और आपके हेडलाइन में भी होनी चाहिए। अलग अलग कीवर्ड्स आपके बैनर और हेडलाइन में नहीं हो सकते, यू कैन नॉट कॉन्ट्राडिक्ट योरसेल्फ, ठीक है। सो दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड, क्योंकि उसी से आपकी जो रैंकिंग है वो बढ़ेगी। ऑल्सो ये मत सोचना कि आज आप सेशन के बाद गए और आपने अपनी कीवर्ड्स बदल दी और अगले दिन से आप रैंक होना शुरू हो जाओगे या सबकी प्रोफाइल पे आपका नाम दिखने लग जाएगा उस कीवर्ड के लिए। इतनी जल्दी कुछ भी नहीं होता है लाइफ में, एंड यू विल हैव टू बी पेशेंट, ठीक है। It will take some time. It has taken me almost 2.5 years to rank the way I rank today. But typically I would say अगर आप 6 महीने के लिए, 6 महीने तो आपको देने पड़ेंगे, आपने जो भी कीवर्ड्स मेंटेन किए हैं, हेडलाइन लिखी है, उसको रैंक, उसकी रैंकिंग स्टार्ट होने के लिए। एंड इन एडिशन टू जस्ट दैट, जैसे मैंने आपको बोला था, सिर्फ आपकी हेडलाइन पे कीवर्ड्स डाल देने से आपको रैंकिंग नहीं मिलती है, और भी बहुत सारे सेक्शंस है जहां पे कीवर्ड्स रिपीट करने पड़ते हैं, जिनकी मैं बात करूंगी। एंड आपको कंटेंट भी क्रिएट करना पड़ता है उस फील्ड के अराउंड और उन कीवर्ड्स और हैशटैग्स को यूज करके। सो बहुत सारी चीजों को कॉम्बिनेशन है, ऐसा नहीं होगा आपने कीवर्ड डाल दिया और कल से आप रैंक होना शुरू हो जाओगे, ओके। सो वो क्लैरिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट था। आई डोंट वांट एनी मिसअंडरस्टैंडिंग इन एनी वे, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, जो कि अबाउट सेक्शन है। अब अबाउट सेक्शन की बात करते हैं हम। जैसे कि आपको नाम बताता है, अबाउट सेक्शन इज ऑल अबाउट यू। अब आप जब बैनर को या हेडलाइन सेक्शन को देखते हो, आपने देखा होगा उधर स्पेस की बहुत लिमिटेशन थी, राइट। बिकॉज बैनर में भी आप लिमिटेड नंबर ऑफ चीजें ही डाल सकते हो या लिख सकते हो, और अगर आप हेडलाइन की बात करते हो जिसकी हमने जस्ट अभी बात की, तो इधर ना आपकी एक लिमिटेशन होती है, यू कैन ऐड ओनली अप टू 133 कैरेक्टर्स, वर्ड्स नहीं, कैरेक्टर्स, विच मीन्स आपका एक एक बैक्स, आपका एक एक स्पेस, आपका एक एक लेटर, एक एक एक्सक्लेमेशन मार्क भी काउंट होता है, ओके। दैट इज वन कैरेक्टर।
So you only have 133 characters. So the main point is आपके पास ज्यादा स्पेस नहीं होती to talk about yourself in the banner and headline. तभी LinkedIn ने आपको एक about section दिया है. In the about section you can talk about yourself at length. ठीक है? So here you utilize this space and this opportunity to talk about yourself at length. आप थोड़ी स्टोरी टेलिंग कर सकते हो इधर. स्टार्ट फ्रॉम योर बेसिक जर्नी और एजुकेशनल डिग्री, कि आपने कौन सी एजुकेशनल डिग्री की है, कहाँ से की है, स्पेशलाइजेशन किस चीज में किया है. फिर आप बात कर सकते हो कि आप करंटली किस रोल में काम कर रहे हो या क्या पढ़ रहे हो, कहाँ से पढ़ रहे हो, एक्सेट्रा, वो सब बात कर सकते हो. एंड देन यू कैन टॉक अबाउट योर मेजर स्किल्स. आपकी मेन स्किल्स या स्ट्रेंथ्स क्या हैं और क्यों हैं और आपने उनको कैसे डेवलप किया. सिर्फ ये मत लिखो कि आपकी मेजर स्किल्स लेट्स से वेब डेवलपमेंट या फुल स्टैक डेवलपमेंट एंड फॉर एग्जांपल यू नो डेटा विजुअलाइजेशन है. सिर्फ ये मत लिखो, बट एक्चुअली टेल मी कि डेटा विजुअलाइजेशन ये स्किल आपने कैसे बिल्ड की. क्या आपने कोई सर्टिफिकेशन किया, क्या आपने इंटर्नशिप्स की, डिड यू बिल्ड सम प्रोजेक्ट्स, डिड यू एक्चुअली यू नो डू अ पार्ट टाइम जॉब, या आपने इससे पहले फुल टाइम जॉब की हुई है इसमें, इसलिए आपने ये स्किल सीखी. तो अपनी स्किल्स के बारे में भी बताइए और इन स्किल्स को आपने कैसे डेवलप किया उसको भी एलैबोरेट कीजिए. ओके. उसके अलावा प्लीज टॉक अबाउट योर इंटरेस्ट आउटसाइड ऑफ वर्क ऑल्सो. आप थोड़ा बहुत लोगों को बता सकते हो कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट है, आपको क्या करना पसंद है आउटसाइड ऑफ वर्क, आउटसाइड ऑफ आप जिस चीज की पढ़ाई कर रहे हो. बिकॉज लिंक्डइन इज नॉट योर रेज्यूमे. तो आप सिर्फ प्रोफेशनल चीजों के बारे में बात नहीं करोगे, बट यू हैव टू स्टिल मेंटेन अ डेकोरम. सो आप थोड़ा बहुत अपनी हॉबीज के बारे में, अपने पैशन प्रोजेक्ट के बारे में अगर कोई है बात कर सकते हो. अगर आपकी कोई पर्सनल वेबसाइट है, पोर्टफोलियो है, या कुछ भी आप खुद के लिए जो करते हो उसके बारे में भी बात कर सकते हो. ओके. टुवर्ड्स द एंड अगर और कुछ भी है जिसपे आप काम कर रहे हो फॉर योर सेल्फ या आप हाईलाइट करना चाहते हो उसे, आप उसके बारे में बात कर सकते हो. और एंड में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एंड में आपके अबाउट सेक्शन में हमेशा एक CTA होना चाहिए जो कि कॉल टू एक्शन होता है, जहां पे आप लोगों को बताओ कि कैसे वो आपको रीच आउट कर सकते हैं. वो एक ईमेल आईडी हो सकता है, वो ये एक सिंपल लाइन हो सकती है, दैट फॉलो मी ऑन लिंक्डइन, DM मी ऑन लिंक्डइन और कनेक्ट विद मी ऑन लिंक्डइन, कुछ भी हो सकता है, या रीच आउट टू मी हियर. बट एक कॉल टू एक्शन होना चाहिए जिससे जिस भी इंसान ने 1-2 मिनट स्पेंड किए आपका अबाउट सेक्शन पढ़ने में, उसको ये ना लगे इतना सब जानने के बाद आई हैव नोवेयर टू गो, या मुझे नहीं पता है मुझे नेक्स्ट क्या करना है. ठीक है. तो एक कॉल टू एक्शन होना चाहिए. और वापस अगर आप नोटिस करोगे तो मोस्ट ऑफ द कीवर्ड्स जो मैंने अपने बैनर और हेडलाइन में यूज किए थे, करियर कोच, कंटेंट क्रिएटर, पब्लिक स्पीकिंग हो गया, रेज्यूमे बिल्डिंग हो गया, लिंक्डइन प्रोफाइल बिल्डिंग, 500+ टॉक्स, हर चीज मैंने वापस रिपीट किया अबाउट सेक्शन में. अगर आप ध्यान से बाद में भी देखोगे यू विल चेक इट आउट, ऑल द कीवर्ड्स आर रिपीटेड. ठीक है. टू इंक्रीज द सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन स्कोर. नेक्स्ट सेक्शन आपका एक्सपीरियंस सेक्शन होता है. ये बहुत ही सिंपल सेक्शन होता है, इसमें ज्यादा कुछ मुझे बताने की जरूरत नहीं है. आपकी जो भी पार्ट टाइम जॉब्स, फुल टाइम जॉब्स, इंटर्नशिप्स, फ्रीलांसिंग वर्क आप करते हो, एनी काइंड ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, वो आप इधर पुट अप करते हो. एंड व्हेन यू आर पुटिंग इट अप, व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड इज कि आप जिस कंपनी में आप काम कर रहे थे और आपका रोल क्या था, सिर्फ वो मत मेंशन करो. आप प्लीज ये भी मेंशन करो कि आपने उधर क्या काम किया, आपने क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया है, कैसे आपने लोगों की या अपनी कंपनी की मदद की है. सो एड एटलीस्ट 2 to 3 बुलेट पॉइंट्स या 2 to 3 पॉइंट्स एक्सप्लेनिंग कि आपने उस कंपनी में एक्चुअल में किया क्या है या क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया है. ठीक है. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मेरे जितने भी रोल्स है KPMG में, where I was working as an SAP associate consultant for 2.5 years, उसके अलावा जितने भी आपको रोल्स देखेंगे वो सारी 25 इंटर्नशिप्स हैं. जो 25 इंटर्नशिप्स मैंने अपने इंजीनियरिंग के टाइम पे की थी, जब मैं 3 साल पहले ग्रेजुएट हुई थी. तो हर एक इंटर्नशिप के लिए भी मैंने एक्सप्लेन किया है मैं उस कंपनी में क्या कर रही थी, कैसे मैंने हेल्प किया. अगर मुझे कोई लेटर ऑफ रिकमेंडेशन या सर्टिफिकेट मिला है तो मैंने उसको भी अटैच किया है. तो हर रोल के लिए आपको ये कंप्लीट करना है. ठीक है. नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू एजुकेशन. अगर आप एजुकेशन की बात करते हो, अगेन इट्स अ वेरी सिंपल सेक्शन. आपका जो अंडर ग्रेजुएशन डिग्री है या अगर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है, वो आपके 12th और 10th के आपके जो ग्रेड्स हैं, आपने जिस कॉलेज से ग्रेजुएट किया है, स्पेशलाइजेशन, वो सब तो आप लिख ही सकते हो. इफ यू आर कंफर्टेबल तो आप अपना CGPA और अपने ग्रेड्स भी मेंशन कर सकते हो. नहीं करना है तो मत करिए. बट ये वाला एक जो सेक्शन है वो जरूर फिलअप करना, विच इज एक्टिविटीज एंड सोसाइटीज. वो हर एजुकेशन वाले सेक्शन में आपको एक ऑप्शन मिलेगा, तो फिल इट अप. So do specify your activities and societies. क्यों? Because that shows कि आपकी एक 360 डिग्री प्रोफाइल रही है और आपने अपनी पूरी होलिस्टिक डेवलपमेंट पे काम किया है, सिर्फ टेक्निकल या सिर्फ लाइफ स्किल्स पे काम नहीं किया है. ओके. सो ऑल्सो टॉक अबाउट द क्लब्स, चैप्टर्स, NGOs, NPOs या जो भी आपने किया है ड्यूरिंग योर कॉलेज टाइम, उसको स्पेसिफाई करिए. ठीक है इधर. सो दैट इज अबाउट द एजुकेशन सेक्शन. विद दैट, मूविंग ऑन,
लाइसेंसेस और सर्टिफिकेशंस की अगर हम बात करें, सो दिस इज अ सेक्शन जहाँ पे आपने जो भी कोर्सेज सर्टिफिकेशंस किए हैं ई लर्निंग प्लेटफॉर्म से, ऑनलाइन या तो ऑफलाइन, वो सारे आप इधर ऐड कर सकते हो। आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि जिस भी रोल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, आइडियली उस रोल से रिलेटेड जो सर्टिफिकेशंस आपने किए प्लीज उनको टॉप पे रखिए, और उनको सबसे फर्स्टली आपकी सर्टिफिकेशन जो देखनी चाहिए वो जिस काइंड ऑफ रोल्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उनसे रिलेटेड हो तो बेटर रहेगा। ये सारी सर्टिफिकेशन तो मैंने 2019 में की थी, मेरे आई थिंक 3rd ईयर में। तो आई एम एन ईसी इंजीनियर, तो ये सारे हमारे कुछ सब्जेक्ट्स थे एक्सटर्नल, उसके लिए मैंने की थी। उसके बाद एज अ करियर कोच एज सच मुझे कोई सर्टिफिकेशन या कोर्स नहीं करना पड़ा। ऑब्वियसली आई एम अ सर्टिफाइड करियर काउंसलर, वो अलग बात है, वो मैंने अपडेट नहीं किया है। बट माई पॉइंट इज आपको याद रखना है कि आपकी जो टॉप 3 सर्टिफिकेशन है या कोर्सेज आप डाल रहे हो वो आपके डोमेन से रिलेटेड होंगे तो बेटर होगा, बिकॉज दैट विल बिल्ड मोर ट्रस्ट। अगर आप वेब डेवलपर बनना चाहते हो तो ऑब्वियसली बात है, अगर मैं वेब डेवलपमेंट सर्टिफिकेशन देखूंगी या वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड कोर्स आपकी प्रोफाइल पे देखूंगी तो मेरे में आपके लिए ज्यादा ट्रस्ट बढ़ेगा टू हायर यू एज अ वेब डेवलपर इन माई फर्म और इन माई स्टार्टअप और इन माई कंपनी। ओके, सो जस्ट कीप इन माइंड दैट। हैविंग सेड दैट, इसका ये मतलब नहीं है अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग पे सर्टिफिकेशन या कंटेंट राइटिंग या किसी भी और फील्ड में सर्टिफिकेशन की है जो आपके जॉब रोल से रिलेटेड नहीं है, आप उसको नहीं डाल सकते। आप डाल सकते हो बट टॉप 3 में मत डालो उसको, 4th 5th 6th सर्टिफिकेशन की तरह डाल दो, ठीक है, टू शो योर डाइवर्स स्किल सेट। ये भी दिखाना जरूरी है। आजकल कंपनीज अप्रिशिएट पीपल हु कम विद मल्टी डिसिप्लिनरी स्किल्स। सो आपको ये दिखाने की जरूरत नहीं है सिर्फ कि मुझे सिर्फ इतना ही आता है और यही आता है। यू कैन डेफिनेटली शोकेस योर अदर स्किल्स। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट सेक्शन है वॉलंटियरिंग सेक्शन। जैसे कि नाम आपको बता रहा होगा, वॉलंटियरिंग सेक्शन इज कोई भी अगर एनजीओ है, एनपीओ है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है या कॉलेज में क्लब्स एंड चैप्टर्स है जिनके लिए हम वॉलंटियर करते हैं, ठीक है, वो सारे वॉलंटियरिंग एक्टिविटीज आप इधर अपडेट करोगे, अपने एक्सपीरियंस सेक्शन में नहीं, ठीक है। सो ऑल ऑफ दैट विल कम हियर। अगर आपको उसके बारे में बात करनी है, बताना है आपने उस वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस में क्या किया, तो जस्ट लाइक द एक्सपीरियंस सेक्शन आप उधर अपने वॉलंटियरिंग सेक्शन में भी एक डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हो और बता सकते हो व्हाट डिड यू एग्जैक्टली डू और हाउ डिड यू हेल्प द टीम, या आपका रोल क्या था, वो सब आप ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट इफ वी मूव ऑन तो द नेक्स्ट सेक्शन इज कॉल्ड स्किल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। लिंक्डइन आपको एक लिमिटेशन देता है, सॉरी एक लिमिट देता है 50 स्किल्स, ओके। सो जैसे आप देख रहे होगे दिस है शो ऑल 50 स्किल्स, तो आप अप टू 50 स्किल्स ऐड कर सकते हो। बट यार ऑब्वियसली बात है, कोई भी बैठ के आपकी 50 स्किल्स देखेगा नहीं। मैंने आज तक किसी की 50 स्किल्स तो देखी ही नहीं है, नॉट डू आई नो एनीबडी जिसने बैठ के मेरी 50 की 50 स्किल देखी होंगी। आई हैव ऑल 50 स्किल्स अपडेटेड, बट 100% श्योर कि 90% से ज्यादा लोग जो मेरी प्रोफाइल पे आते होंगे वो मेरी टॉप 3 स्किल जरूर देखते होंगे, बिकॉज दैट इज इजिली विजिबल अकॉर्डिंग टू द यूआई, अगर आप यूजर इंटरफेस भी देखो। एंड सेकंड चीज, पहले 3 स्किल्स के बाद मुझे शो ऑन ऑल 50 स्किल्स पे क्लिक करना पड़ता है टू गो टू अ फर्दर सेक्शन। मोस्टली लोग वो करेंगे नहीं, बट टॉप 3 स्किल्स जरूर लोग देखेंगे। सो यू नीड टू मेक श्योर आप बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हो अबाउट योर टॉप 3 स्किल्स, यू आर वेरी श्योर अबाउट योर टॉप 3 स्किल्स, and only put those as your top 3 skills जिनके बारे में you're very confident, like I said. So जैसे मुझे पता है public speaking, interpersonal skills, management consulting, these are my top 3 skills which I'm very confident about, और इसलिए इन skills पे मैंने endorsements भी collect की हैं। Endorsements is nothing but you know somebody else जिसने आपके साथ काम किया हुआ है वो आके मतलब vouch करे और बोले कि नहीं धैर्य एक्चुअल में पब्लिक स्पीकिंग में अच्छी है, बिकॉज मैं तो बोल सकती हूँ मैं पब्लिक स्पीकिंग में अच्छी हूँ, बट जब 100 लोग या बहुत ज्यादा स्किल्ड लोग पब्लिक स्पीकिंग में आके बोलते हैं कि धैर्य एक्चुअल में अच्छी है पब्लिक स्पीकिंग में, देन एक थर्ड पार्टी ट्रस्ट डेवलप होता है, राइट। आप Amazon पे अगर एक फोन कवर या एक छोटी सी छोटी चीज भी खरीदना चाहते हो, आप सबसे पहले रिव्यूज देखते हो, राइट। आप ऐसे ही कुछ भी नहीं खरीद लेते हो, एटलीस्ट मैं देखती हूँ कि अगर कोई भी ड्रेस में खरीद रही हूँ या इफ आई एम ऑर्डरिंग इवन अ वॉच और एनीथिंग, आई विल रीड अप द रिव्यूज कि लोग क्या कह रहे हैं इस प्रोडक्ट के बारे में, और अगर मुझे रिव्यूज अच्छे लगते हैं तो मैं ट्रस्ट करूंगी और मैं वो प्रोडक्ट ऑर्डर करूंगी, नहीं तो मैं नहीं करती हूँ। सिमिलरली आपके जो एंडोर्समेंट्स हैं आपके स्किल्स पे, जैसे आप देख सकते हो एंडोर्स बाय सलोनी मौर्य एंड 7 others who are highly skilled at this, endorsed by 4 colleagues at KPMG in India, तो मेरे जो कॉलीग्स थे एक्स कॉलीग्स उन्होंने भी इंडोर्स किया। और जैसे ही आपकी 99 से ज्यादा एंडोर्समेंट्स हो जाती है किसी भी स्किल पे, तो लिंक्डइन सिर्फ 99+ एंडोर्समेंट्स दिखाता है, फिर वो नंबर नहीं दिखाता, ठीक है। ये सारी चीजें ट्रस्ट डेवलप करती हैं एक रिक्रूटर में या जो भी आपको हायर करने वाला है फ्यूचर में, एक स्टार्टअप फाउंडर में, कि इस इंसान को मैं एक्चुअली हायर कर सकता हूँ बिकॉज इतने सारे लोगों ने एंडोर्स की हुई है इसकी स्किल।
ठीक है। सो मेक श्योर कि आप अपनी टॉप 3 स्किल्स अच्छे से अपडेट करो। अपने बॉसेस या अपने मैनेजर्स या अपने बैचमेट्स या जिनके साथ भी आप प्रोजेक्ट्स बना रहे हो या आपके इंटर्नशिप में जो बॉस हैं, किसी से भी जिसने आपका काम देखा हुआ है, उनसे प्लीज एंडोर्समेंट्स कलेक्ट करिए ऑन लिंक्डइन बिकॉज इट्स एक्सट्रीमली हेल्पफुल। ओके, सो दैट्स अबाउट दैट। नेक्स्ट मूविंग ऑन, अगर आप देखेंगे तो दिस इज द रिकमेंडेशन सेक्शन। अब रिकमेंडेशन सेक्शन की अगर आप बात करोगे, जैसे आप लोगों को पता होगा, अगर आपको एक MBA या मास्टर्स डिग्री परसू करनी है आगे जाके, तो मोस्टली आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखने को बोला जाता है यूनिवर्सिटी से, और वो LORs आप अपने प्रीवियस मैनेजर्स, बॉसेस या प्रोफेसर से लिखवाते हैं, राइट। सिमिलरली लिंक्डइन पे एक ऑप्शन होता है कि आप रिकमेंडेशन लिखवा सको उन लोगों से जिन्होंने आपके साथ काम किया अगेन, और जो आपके लिए 2-3 लाइन लिखने को तैयार है और ये बताने को तैयार है उनका एक्सपीरियंस कैसा था आपके साथ काम करने का। सो दैट इज द रिकमेंडेशन सेक्शन। और रिकमेंडेशन आपको किसी से भी मिल सकती है, ऐसा जरूरी नहीं है उस इंसान को आपसे बड़ा होना जरूरी है। सो इट डजंट हैव टू बी समवन सीनियर टू यू और एल्डर टू यू, इट कैन बी एनीबडी दैट, बट दैट पर्सन शुड हैव वर्कड विद यू इन सम कैपेसिटी। ठीक है, तो मेरे लिए रिकमेंडेशंस मेरे जूनियर्स फ्रॉम कॉलेज ने भी लिखे हुए हैं, मेरे सीनियर्स ने लिखे हैं, मेरे प्रोफेसर्स, मेरे एक्स कॉलीग्स, मेरे जो क्लाइंट्स हैं जो मेरे से 1-on-1 सेशंस बुक करते हैं, अब वो हैं, स्टार्टअप फाउंडर्स हैं, सब ने, हर तरीके के इंसान ने मेरे को एक रिकमेंडेशन दी हुई है। ठीक है, सो मेक श्योर यू गेट रिकमेंडेशंस फ्रॉम पीपल एज वेल। अगेन ये एक और साइन हो जाता है एक रिक्रूटर के लिए आप पे और ज्यादा ट्रस्ट करने का। कोर्सेज वाला जो सेक्शन है आप स्किप कर सकते हो। इधर आपको बेसिकली जो भी आपने सब्जेक्ट्स पढ़े होते हैं अपने अंडर ग्रेजुएशन डिग्री में, वेदर इट्स BBA, BCom, BTech इन IT इंजीनियरिंग, BTech इन CS, ECE, जो भी है, उसके कोर सब्जेक्ट सारे आपको फिलअप करने होते हैं, विच आई डोंट थिंक इज नेसेसरी। ये मैंने अपने सेकंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में डाला था एंड देन तब से मैंने डिलीट नहीं किया, बट इट्स नॉट नीडेड अनलेस अब आगे जाके भी लेट्स से आपने BTech इन EC इंजीनियरिंग की, फिर आप MTech करना चाहते हो VLSI में या सेमीकंडक्टर्स में, और फिर आप उसी फील्ड में कोर जॉब ढूंढने वाले हो या आपको रिसर्च डिग्री परसू करनी है, तो यस, आपने कौन से कोर सब्जेक्ट्स पढ़े वो इंपॉर्टेंट होते हैं, वरना इट्स नॉट नीडेड, तो यू कैन स्किप दैट सेक्शन। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट सेक्शन की बात करें, प्रोजेक्ट्स, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस, स्पेशली एज अ टेक enthusiast और एज समवन हु इज लुकिंग फॉर अ टेक जॉब, बिकॉज एज अ टेकी यू डू बिल्ड अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स। ठीक है, आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम करते ही हो, वेदर इट्स अ कॉलेज project or it is a self-paced project or it is a project that you build during your internships at your workplace. अब projects का सिर्फ title और duration लिख के प्लीज मत छोड़ देना। Do make sure that you specify कि project का objective क्या था, आपने project में कौन सी tech stack या technologies use की to achieve the objective of the project। ठीक है, talk about final outcome or the result of the project as well। Finally outcome क्या था, what did you accomplish। हर project का एक outcome या conclusion होता है। ठीक है, so make sure you add that। LinkedIn पे आपके पास एक ऑप्शन होता है टू ऐड अ लिंक टू योर प्रोजेक्ट ऑल्सो, तो अगर GitHub पे आपने अपलोड किया हुआ है अपना प्रोजेक्ट या ओपन सोर्स कोड, वो आप लिंक कर सकते हो। अगर आपने एक YouTube वीडियो बनाई है टू शो द डेमो ऑफ योर प्रोजेक्ट, इफ इट्स अ सॉफ्टवेयर कम हार्डवेयर प्रोजेक्ट और आपने उसका सिमुलेशन दिखाया हुआ है, तो आप उसको रिकॉर्ड करके उसकी एक YouTube वीडियो, डेमो वीडियो की भी लिंक डाल सकते हो इन योर प्रोजेक्ट। और जनरली हम प्रोजेक्ट्स दूसरे लोगों के साथ बनाते हैं, तो अगर आपको को ऑथर्स को या को क्रिएटर्स को ऐड करना है तो उसका भी ऑप्शन है टू ऐड अदर मेंबर्स हु हैव मेड द प्रोजेक्ट विद यू ऑन लिंक्डइन। सो मुझे लगता है दिस सेक्शन हैज अ लॉट ऑफ यूटिलिटी, यू कैन यूज इट वेरी पावरफुली, सो डू अपडेट इट। ठीक है, coming to honors and awards, this is a section wherein you talk about your accomplishments. It's like a highlight section जहाँ पे जो भी important चीजें हैं culturally, educationally, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से रिलेटेड हो या सब academic से रिलेटेड हो, वो सब आप इधर अपडेट कर सकते हो। इट कुड बी relevant to achievements in your school also, in your college, at your workplace, all stages। ठीक है, so all of that can be added here and you can add descriptions explaining उस अवार्ड का क्या सिग्निफिकेंस है या क्यों मिला है, वो सब भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। लैंग्वेजेस जो भी आपको फॉरेन या रीजनल लैंग्वेजेस पता है, यू आर प्रोफिशिएंट इन देम, प्लीज ऐड देम। यू कैन स्पेसिफाई योर प्रोफिशिएंसी लेवल, इंटरमीडिएट प्रोफिशिएंसी आपकी, अगर एलिमेंट्री या फुल स्पीकिंग प्रोफिशिएंसी है, जो भी है, यू कैन स्पेसिफाई दैट। ऑर्गेनाइजेशंस वाला जो सेक्शन है उसको आप स्किप कर सकते हैं बिकॉज इट्स अगेन अ रेपुटेशन ऑफ द कंपनीज यू हैव वर्कड विद, जो कि आपके एक्सपीरियंस और वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस सेक्शन में कवर हो जाता है इन अ वे और द अदर, सो दिस सेक्शन यू कैन स्किप। ठीक है, अब वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू स्पेसिफाई इज, अगर आप देखोगे जब आप अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप पे लॉग इन करोगे लिंक्डइन पे, जैसे मैंने अभी किया हुआ है, आपको एक बटन दिखेगा जो ओपन टू सेक्शन के जस्ट एडजेसेंट है।
एड जस्ट नहीं, बिसाइड है, सॉरी, which is add profile section. ठीक है, so if you click on add profile section, this is that one button जिसके थ्रू जो भी मैंने आपको अभी तक दिखाया है, एक एक सेक्शन आप सिर्फ इस एक बटन के थ्रू ऐड कर सकते हो. तो कंफ्यूज होने की या ओवरवेल्म होने की कोई जरूरत नहीं है. एवरीथिंग कैन बी एडेड फ्रॉम द क्लिक ऑफ वन बटन. एज सून एज यू क्लिक ऑन ऐड प्रोफाइल सेक्शन, यू विल बी रीडायरेक्टेड टू 3 डिफरेंट सेक्शंस, जो कि कोर, रेकमेंडेड और एडिशनल है. आप कोर को एक्सपैंड करोगे तो आप अपनी एजुकेशन डाल सकते हो, जिसकी हमने बाकी पोजीशंस में हम बात कर चुके हैं. आपके एक्सपीरियंसेस आप ऐड कर सकते हो. अगर आपने करियर ब्रेक लिया है फॉर वट एवर रीजन, तो आप 13 रीजन में से चूज करके अपने करियर ब्रेक को भी ऐड कर सकते हो. लिंक्डइन ये इनकरेज करता है कि आप करियर ब्रेक्स को एम्ब्रेस करें एंड यू टॉक अबाउट इट ओपनली, बिकॉज इट्स ओनली नॉर्मल एंड ह्यूमन टू टेक अ करियर ब्रेक. आप बस जस्टिफाई करिए कि आपने करियर ब्रेक क्यों लिया, तो यू कैन चूज फ्रॉम द रीजंस. अब रेकमेंडेड के अंदर फीचर्ड सेक्शन है, लाइसेंसेस एंड सर्टिफिकेशंस है, कोर्सेज जिसकी हमने बात की है वो है, एंड रिकमेंडेशंस है. ठीक है, फीचर सेक्शन में आपको क्विकली दिखा देती हूँ, शायद हमने उसको मिस कर दिया था. दिस इज द फीचर्ड सेक्शन. जैसे कि इंस्टाग्राम पे एक हाईलाइट सेक्शन होता है जहां पे जो भी स्टोरीज या इंपॉर्टेंट चीजें आप हाईलाइट करना चाहते हो, वैसे ही फीचर सेक्शन पे आप वो लिंक्स, ठीक है, या वो चीजें ऐड करते हो, वो पोस्ट ऐड करते हो जो आप एक्चुअल में लोगों को सबसे पहले अपनी प्रोफाइल पे दिखाना चाहते हो. अब ये YouTube वीडियो मैंने जस्ट आज दोपहर में अपलोड की है, तो आई वांट टू ऑब्वियसली शो इट टू माय लिंक्डइन ऑडियंस एंड गेट ट्रैक्शन ऑन इट. तो सबसे पहली लिंक आपको वो दिखेगी. फिर एक YouTube शॉर्ट है जो मैंने कल डाला था. फिर आपको मेरी वेबसाइट लिंक दिख जाएगी Thera Decodes की, विच इज द लिंक टू बुक अ वन-ऑन-वन मेंटरिंग सेशन विद मी. वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है. सो दोज आर माय टॉप 3 फीचर्ड पोस्ट एंड यू कैन ऐड अनलिमिटेड फीचर्ड पोस्ट. बट अकॉर्डिंगली आपको सोचना है फॉर यू. अगर आपने कोई सर्टिफिकेशन किया है जो बहुत वैल्यूएबल है आपकी इंडस्ट्री में, आपको उसकी लिंक ऐड करनी चाहिए आपकी फीचर सेक्शन में. अगर आपको कोई अवार्ड मिला है आप वो डाल सकते हो. आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन या एक प्रमोशन लेटर मिला है फ्रॉम योर बॉस, आप वो डाल सकते हो इफ यू थिंक दैट इज इंपॉर्टेंट. या अगर आपकी गिटहब रिपोजिटरी आप वो डाल सकते हो. आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स है जहाँ आप कंटेंट क्रिएट करते हो, आप वो भी ऐड कर सकते हो. इट्स अप टू यू. या आपने लिंक्डइन पे कोई पोस्ट की है रिलेटेड टू डेटा एनालिसिस या फुल स्टैक डेवलपमेंट एक्सेट्रा, जहाँ आपने अपनी नॉलेज शेयर की और उस पोस्ट ने बहुत अच्छा किया है एंड यू वांट टू कीप इट इन योर फीचर्ड सेक्शन, आप वो भी कर सकते हो. राइट, जैसे कि अगर मैं राइट साइड पे जाऊंगी तो ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज अ पोस्ट. ठीक है, दिस इज ये कंटेंट है जो मैं क्रिएट करती हूँ लिंक्डइन पे. तो आप कंटेंट पीसेस या आपकी लिंक्डइन पोस्ट को भी फीचर सेक्शन पे डाल सकते हो, या एक एक्सटर्नल लिंक भी डाल सकते हो. यू आर फ्री टू डू दैट. ये भी एक पोस्ट है, एक वीडियो है, ये तो यूट्यूब लिंक है, ये भी एक पोस्ट है. सो यू कैन ऐड एनीथिंग. ठीक है, सो दैट्स प्रीटी मच व्हाट द फीचर्ड सेक्शन इज. सो लाइक आई वाज टेलिंग यू, आप हर एक सेक्शन ऐड प्रोफाइल सेक्शन पे क्लिक करके इन तीनों सेक्शंस को एक्सपैंड करके आपको सारे सेक्शंस इधर ही मिल जाएंगे. एडिशनल सेक्शन के अंदर वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस जिसकी हमने बात की. पब्लिकेशंस मेरे पास कोई है नहीं, बिकॉज मैंने कोई रिसर्च पेपर्स पब्लिश नहीं किए. अगर आपने किया आप ऐड कर सकते हो. कोई पेटेंट्स मेरे नाम के अंडर नहीं है तो दैट्स स्किप्ड. प्रोजेक्ट्स मैंने आपको दिखाया, ऑनर्स एंड अवार्ड्स दिखाया. टेस्ट स्कोर्स, कोई भी आपने एग्जामिनेशन दी हो, कैट, जीमैट, आईएलटीएस, टोफल, एनीथिंग, उसके टेस्ट स्कोर्स आप ऐड कर सकते हो. आई हैव नॉट गिवन एनी, सो इट्स नॉट देयर. लैंग्वेजेस, ऑर्गेनाइजेशंस एंड लास्ट कॉजेस. कोई भी अगर कॉज है, वेदर इट्स एनिमल वेलफेयर, इट्स वुमेन एम्पावरमेंट, चाइल्ड एजुकेशन, जिसके लिए आप फील करते हो या यू आर वर्किंग टुवर्ड्स इट या यू सपोर्ट इट, उन कॉजेस को भी आप इधर ऐड कर सकते हो. सो प्रिटी मच हर एक चीज जो आपकी प्रोफाइल में अपडेटेड और ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, वो इस एक बटन के थ्रू आप ऑप्टिमाइज और अपडेट कर सकते हो. राइट, सो विद दैट मैंने आपको पूरा डेमो तो दे दिया है विद रिस्पेक्ट टू द लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन पार्ट. आप क्विकली आई कम बैक टू द मीटिंग, क्योंकि मुझे आपको थोड़ा बहुत अबाउट पर्सनल ब्रांडिंग भी बताना है, और फिर आई ओपन द फ्लोर फॉर Q&A. जस्ट 5 more minutes. So give me 5 minutes and then उसके बाद we'll open the floor for your questions. ठीक है, अब ये तो आपको समझ में आ गया हो गया हाउ राइट फ्रॉम योर डिस्प्ले पिक्चर से लेकर आपकी स्किल्स या रिकमेंडेशंस तक आपको कैसे अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करनी है. ठीक है, अब वो स्टेप 1 होता है. अब स्टेप 1 जब कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपको मूव करना होता है टू स्टेप 2, विच इज टू एक्चुअली स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट इन योर फील्ड और डोमेन ऑफ एक्सपर्टीज. एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि कंटेंट क्रिएशन सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स के लिए नहीं होती. डोंट थिंक दैट कंटेंट क्रिएटर्स ही कंटेंट क्रिएट करते हैं. व्हाट इज कंटेंट? कंटेंट इज अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन. यू आर शेयरिंग योर थॉट्स, दैट्स इट, दैट्स ऑल दैट यू आर डूइंग. जब मैं एक ओपिनियन लिखती हूँ अबाउट एनीथिंग दैट्स हैपनिंग, दैट इज जस्ट माय ओपिनियन. अगर मैं दे रही हूँ 3 tips टू लैंड अ जॉब, आई एम श्योर आपके पास भी 3 tips हैं टू लैंड अ जॉब. इट्स जस्ट दैट आई एम वॉइसिंग इट आउट. सो माय पॉइंट इज, ये मत सोचिए कि दैट ओनली कंटेंट क्रिएटर्स कैन क्रिएट कंटेंट.
आप जिस फील्ड में जॉब ढूंढ रहे हो, अगर आपने उस फील्ड में आपकी एक्सपर्टीज पब्लिकली नहीं दिखाई, इट्स डिफिकल्ट फॉर रिक्रूटर्स एंड फॉर कंपनी फाउंडर्स टू फाइंड यू. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको फुल स्टैक डेवलपर बनना है, देन प्लीज शेयर योर नॉलेज अबाउट फुल स्टैक डेवलपमेंट, जो भी आप सीख रहे हो थ्रू कोर्सेज, through tutorials, or through doing a job or an internship, whatever you have learned, share your learnings on LinkedIn. Why? Because only when you will share, तब 1000-2000 लोग उसको organically LinkedIn पे देखेंगे. उन 1000 में से मे बी 5 या 10 रिक्रूटर्स होंगे, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब रेपिटेडली आपकी पोस्ट उनकी लिंक्डइन फीड पे बार बार दिखेंगी और उन्हें आपके पोस्ट में कुछ वैल्यू दिखेगी, या उनको ऐसा लगेगा कि यार this person knows what he or she is talking about, yeah, they have good knowledge about this, only then will they reach out to you and offer you a job. और आपको इनबाउंड जॉब क्वेरीज आएंगी. सो द पॉइंट इज, अगर आपको विजिबल होना है एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा. अनफॉर्चुनेटली आपको वीडियोस नहीं बनानी है, मत बनाइए. लिंक्डइन इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू नॉट शो योर फेस. यू कैन राइट रिटन कंटेंट, यू कैन ऐड PDFs with content, but आपको अपनी एक्सपर्टीज दिखानी पड़ेगी, तभी people will be able to discover you. Okay, and only then you will be able to connect with the right individuals as well. Okay, so that is step 2. And then the last step is creating a personal brand. You created a optimized profile, started creating content in that niche, and then you take the last step, which is आप अपना personal brand create करते हो, जो automatically step 1 और 2 करते ही बन जाता है. But that is only how you will reach step 3. Step 3 कभी भी step 1 और 2 से पहले नहीं हो सकता. Personal brand is what? It's something that people know you for without you telling them मैं ये चीज करती हूँ या करता हूँ. ठीक है, आज मैं आपके लिए एक लिंक्डइन प्रोफाइल बिल्डिंग एंड पर्सनल ब्रांडिंग सेशन ले रही हूँ, तो आज कल परसों एक हफ्ते तक आपको आपका मुझे याद रखना कि यार एक धैर्या गंगवानी आई थी जिसने एक सेशन लिया था. इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स ओके इफ यू रिमेंबर मी. बट 1 or 2 years from now, 1-2 साल बाद अगर कोई आपसे पूछे कि आई नीड हेल्प विद माई लिंक्डइन प्रोफाइल, या मुझे पर्सनल ब्रांडिंग सीखनी है, मुझे रेज्यूमे में हेल्प चाहिए, या आई एम लुकिंग फॉर अ करियर कोच, तब अगर बाय डिफॉल्ट अनकॉन्शियसली ऑटोमेटिकली आपको मेरा नाम याद आता है, देन आई हैव क्रिएटेड अ स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड, जहां पे आपको मेरी प्रेजेंस या मेरी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं है बताने के लिए कि मेरा रिकमेंडेशन दो. राइट, आज जब आप पिज्जा हट, मतलब पिज्जा का नाम सोचते हो, इमीडिएटली पिज्जा हट या डोमिनोज आपके दिमाग में आता है. दैट्स द स्ट्रॉन्ग रिकॉल वैल्यू, राइट? ब्रांड रिकॉल they've created. When you just talk about ice creams, you'll think about Naturals or Baskin Robbins automatically. There are many other brands, but these brands have created a strong presence. Similarly, हर एक इंडिविजुअल के पास एक पर्सनल ब्रांड क्रिएट करने की कैपेबिलिटी होती है, राइट? And all of us have a personal brand. It's just that some of us choose to put it out there, some don't. ठीक है, सो पर्सनल ब्रांड तब क्रिएट होता है जब आप एक नीश को पकड़ते हो, एक डोमेन नॉलेज को पकड़ते हो, और उसके बारे में यू स्टार्ट शेयरिंग वट एवर इट इज दैट यू नो अबाउट दैट, एंड देन पीपल स्टार्ट नोइंग यू फॉर दैट. जैसे आज माई नेम इज सिनोनिमस टू करियर कोच एंड लिंक्डइन क्रिएटर. ऑलवेज मैं जहां भी जाती हूँ, पीपल नो मी एज अ करियर कोच and a LinkedIn content creator or a content creator. Those are the 2 words by which I've created my brand, right, in the past 2.5 years. So similarly, आपको ये सोचना पड़ेगा और फिगर आउट करना पड़ेगा कौन सी चीजों के लिए मैं अपना पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, एंड देन स्लोली एंड स्टडीली उसके बारे में कंटेंट क्रिएट करिए, अपनी प्रोफाइल अपडेट करिए, लाइक माइंडेड पीपल से कनेक्ट करिए ऑन लिंक्डइन, network with them, attend the right kind of events, and that's how overall you will build a personal brand in that field. Okay, and with that I think I've spoken enough. Now it is time कि हम आपके questions को answer करें. So what we can probably do is, Jonas, do you want to maybe read out the important questions for me if possible? Yeah, sure. So if anyone has questions, they can just drop it in the chat and I'll read it Sure. out so that they can answer it. हाँ, तो अगर आपकी कोई भी questions है, आप उसको chat में डाल सकते हैं, and I would be, more than willing to answer your questions. और अगर आपको let's say chat में नहीं डालना है, डायरेक्टली पूछना भी है, you can raise your hand, फिर हम आपको अनम्यूट कर देंगे and you can ask your question. किसी को सवाल पूछना है, आप अनम्यूट भी कर सकते हैं. We'll wait maybe for a minute. Let's see if they have. इमानी, क्या आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं? I think many people are sending me a direct message.
Yeah, even I'm getting some direct messages. Okay, Imani has asked about personal branding. She just missed that. Could you just like tell about that? Yeah, so personal branding is all about letting people know what you're really good at, and letting them know what skill set you bring to the table. So for example, let's say if you want to be known as a digital marketer and that's the field in which you want to keep building your skill set, it is important कि आप अपना personal brand as a digital marketer build करें. उसके लिए आपकी एक optimized profile होनी चाहिए with keywords relevant to digital marketing. That's the first step. Like जैसे हमने बात की. Second, you should start creating content around digital marketing ताकि और ज्यादा लोगों के सर्कल में और विसिनिटी में आप विजिबल हो जाओ. And then thirdly, you should connect with the right thought leaders and people who are already doing well in digital marketing. क्योंकि जब तक you will not come in their circle, it'll become difficult for you to get those opportunities. ठीक है? So a personal brand is basically something for which you start getting known for. Okay. Asad says you have explained everything in much detail. Can't think of anything. What kind of questions you get after sessions? Okay. I think, see, it's purely up to you. I always try to explain everything in detail. But if there are still questions, I'm always happy to answer them. I think Chandan has raised his hand. Do you have a question, Chandan? Okay, give me a second. So I've asked you to unmute, Chandan. If you have a question, you can ask that question now. Hello. Yeah, hi. Hello. We can Am I hear you. audible, ma'am? Yeah, you are. Good evening, ma'am. Yeah, good evening. मैम अगर हम पूरी तरह से फ्रेशर है तो एक्सपीरियंस सेक्शन में मुझे क्या डालना चाहिए? अगर आप फ्रेशर हो देन जो भी आप कॉलेज में किसी भी लेट्स से क्लब या चैप्टर का पार्ट हो, राइट, और उधर आपका कोई लीडरशिप रोल है, आप वो डाल सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप कोई भी वॉलंटियरिंग वर्क कर रहे हो तो लाइक आई टोल्ड यू, वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस में ऐड कर सकते हो कुछ. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, टिल द टाइम आपके पास कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है ऑफ एन इंटर्नशिप, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर सर्टिफिकेशंस, प्रोजेक्ट्स एंड वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस सेक्शन. उसको अच्छे से डिफाइन करो, हाईलाइट करो इन डिटेल till the time you don't do your first internship या कोई एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलता है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जो दूसरी चीजें आप जो भी कर रहे हो इन कॉलेज, उनको आप दूसरे सेक्शंस में हाईलाइट कर सकते हो. द पॉइंट इज ब्लैंक नहीं होनी चाहिए आपकी प्रोफाइल एज अ फ्रेशर, बिकॉज आप दूसरी चीजें तो कर ही रहे हो. कोई कोर्स सर्टिफिकेशन कर रहे हो तो वो डाल दो, वो नहीं कर रहे हो, प्रोजेक्ट्स कर रहे हो तो प्रोजेक्ट्स अपडेटेड होने चाहिए. यू कैन नॉट से मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, राइट, एज अ फ्रेशर. यू हैव टू डू एटलीस्ट वन थिंग. सो या, दैट्स दैट. नाउ थिंक वी हैव Varun. Varun, you have raised your hand. Ask Varun to unmute. Yeah. So अगर कोई अगर कोई एक इंसान जिसके पास सिर्फ अगर से 12th का सर्टिफिकेट हो बट कोई प्रोफेशनल डिग्री वगैरह ना हो तो उसको क्या करना चाहिए? Sorry? अगर किसी के पास ऐसा कोई प्रोफेशनल डिग्री ना हो जैसे कि बीटेक इन सीएस, किसी उसके पास एक 12th पास का सर्टिफिकेट हो तो उसे क्या करना चाहिए? नो, बट फिर आपने उसके बाद आपने कुछ तो मतलब सोचा होगा ना करने का, या आपने कुछ किया होगा एज सच, राइट? या यू आर प्लानिंग टू डू, या आपने अपने ऊपर कुछ कोई कोर्स हो सकता है, सर्टिफिकेशन हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है जिसपे आप काम कर रहे हो. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो हाईलाइट करो. फिर आप क्या कर रहे हो इन दैट पीरियड ऑफ टाइम. उस इंसान के पास स्किल्स है, मतलब उसको अच्छा खासा अभी कितना 2-3 साल का एक्सपीरियंस है स्टार्टअप्स के अंदर, तो Hello. Daria. बोलिए. Are you here? I think Daria has dropped in the call. Okay. Let me just tell them. हाँ, आपके जो भी क्वेश्चन है आप चैट में डाल दीजिए. सुशील, कुणाल, रवि, स्मिथ, कैलाश और रवि. अभी मैं बस चेक कर. Okay. नेटवर्क इशू आ गया है.
होते रहता है। Can you connect with Daria? Is she on या the या call? डिस्कनेक्ट हो गया है, अभी आएंगे वापस। Okay. टिल देन Till then आप आप लोग सब लोगों ने chat में डाल सकते हो questions अपने। हाँ, वरुण, कुणाल, और सुशील, कैलाश और अभिषेक। यस, और आप सब ने डिस्कॉर्ड इंस्टॉल कर लिया है ना? आप सब ने ज्वाइन कर लिया है ना सर्वर? कैन आई गेट अ यस इन द चैट? रिएक्ट कर दीजिए अगर आपने ज्वाइन कर लिया, just give a thumbs up. ओके, थम्स अप या फिर कुछ भी। Okay. Yes. Okay. Many yeses. Okay. Moving forward, मैं सबसे चाहता हूँ कि आप सब लोग डिस्कॉर्ड में एंगेज करते रहें एंड देयर बी मोर सेशन लाइक दिस, और भी सेशन होंगे और कॉन्टेस्ट भी होंगे हर वीक। और आपने देखा होगा मीम कॉन्टेस्ट के विनर्स भी अनाउंस हो गए हैं, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। हाँ, डीसी की लिंक आई थिंक आपके स्लैक चैनल पे दिया होगा, नहीं तो भी आई विल जस्ट सेंड इट हियर एज वेल। और मैं एक फॉर्म में डाल रहा हूँ, वो फॉर्म को बस फिल कर। यूनुस चैट में एक फॉर्म डाल रहा है, आप सब उसको प्लीज भर दीजिएगा। Make sure to drop a thumbs up जब आप फॉर्म को भरते हैं उसके बाद, ताकि हमें पता चले कि आपने। ठीक है, मैं ये फॉर्म स्लैक चैनल पे भी भेज दूंगा, आप सब फिल कर सकते हो। अभी आपका सेशन है क्या? ओके, कोई नहीं। अगर आपका सेशन शुरू होने वाला है तो आप मीटिंग लीव कर सकते हैं एंड देन यू कैन ज्वाइन। और जो भी क्वेश्चंस है आप स्लैक चैनल पे डाल दीजिए, या फिर फॉर्म में फिल कर दीजिए। जस्ट जो भी फॉर्म होगा उस पे आप फिल कर दीजिए। ओके, 1 मिनट। सुमित, आप अपना क्वेश्चन एक बार स्लैक या डिस्कॉर्ड पे भी डाल दीजिएगा। यूनुस, इट सीम्स द फॉर्म इज नॉट हाँ ओपन। हम फिक्स कर। ओके ठीक ठीक है। अभी Which type of skill is most important? Do we take the questions right now, Yunus, or should we ask them? मतलब हमें अभी questions लेने और या हमें उनको बोलना है कि Slack पे डाल दो? आप फॉर्म में एक ऑप्शन है एनी, उस पे ना फीडबैक करके एनी ओवरऑल फीडबैक, उस पे आपका क्वेश्चन डाल दीजिए। आप अपने questions वहाँ डाल दीजिए। और डिस्कॉर्ड पे भी आप क्वेश्चन डाल सकते हैं एंड बाकी डिस्कॉर्ड की जनरल चैट है एंड डेली एक्टिविटीज का चैनल आप यूज कर सकते हैं, वहाँ पर यूनुस मैं एक्टिव रहते हैं, वी विल आंसर। डिस्कॉर्ड की लिंक, ओके, अभी भेज। कैन यू शेयर दैट? यस, ओ फॉर्म में रहेगा, फॉर्म में आप एडेड द डिस्कॉर्ड लिंक, तो आप फॉर्म फिल करने के बाद ज्वाइन कर सकते हैं डिस्कॉर्ड। मैम, कैन यू समराइज दिस सेशन? समरी आपको सेशन डिस्कॉर्ड चैनल में मिल जाएगा। यस असद, आप जा सकते हो। इफ यू फिल्ड अभी द आप फॉर्म, आप लोग जा सकते हो। फॉर्म फिल करने के बाद आप यू कैन Please make sure you fill the form and then you can leave them. और जो भी क्वेश्चन हो फॉर्म में डाल दीजिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग गाइस। आप सेशन को लीव कर सकते हैं अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया। और नेक्स्ट वीक से हाँ हो गया।
हाँ, दे आर फिलिंग फॉर्म। फॉर्म का लिंक आप हम स्लैक में भेज देंगे, फिल कर दीजिए। नाउ आई एंड दिस। थैंक यू गाइस फॉर जॉइनिंग।